Hi dudes, what's up? How are you? Fine? Did you understand the previous lecture? Why we discussed the basics about the chemistry? Today we are going to discuss about the calculation of chemistry and the basic chapter, the mole concept. आप जानते हैं कि हर एक चीज को नापने के लिए, मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलरली डिफाइंड यूनिट चाहिए. क्या है वो पर्टिकुलर डिफाइंड यूनिट? जैसे कि हम लोग चावल को नापने के लिए केजी का इस्तेमाल करते हैं, किसी के मास को नापने के लिए हम केजी का इस्तेमाल करते हैं, किसी लिक्विड के वॉल्यूम को नापने के लिए हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मेरे हाइट कितना है नापने के लिए हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं. तो हर चीज को नापने के लिए टू मेजर ईच एंड एवरी आइटम देयर इज अ डिफाइंड यूनिट. हम तो दुकानदार को जाके नहीं मांग सकते कि भाई साहब हमको 4 करोड़ चावल दे दीजिए, वो उठा पटा के मारेगा आपको, वो अलग. तो हम लोग कैसे मांगते हैं? सर हमको 4 केजी चावल दे दीजिए. हम दुकानदार से जाके ये नहीं मांगते कि सर हमको 10 लीटर का जूता दे दीजिए, ऐसा नहीं मांगते. कि सर हमको 20 लीटर का सॉक्स दे दीजिए, ऐसा नहीं मांगते. हर चीज को नापने के लिए टू मेजर एवरीथिंग देयर इज ए पर्टिकुलर यूनिट. वैसे ही छोटे छोटे चीजों को जैसे कि एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, उसके मास को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है. क्या है? एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स को नापने के लिए एक यूनिट जो हम लोग पढ़ेंगे आज, वो है मोल. तो मोल क्या है? मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. व्हाट इज मोल? द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? यूनिट इज नथिंग बट मोल. क्लियर? व्हाट इज मोल? इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. हम लोग मोल को क्या बोल सकते हैं? इट इज जस्ट ए काउंटिंग यूनिट. ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज जस्ट ए काउंटिंग यूनिट. व्हाट एल्स आई कैन से एज ए मोल? हम लोग मोल को भी ऐसे बोल सकते हैं, इट इज काउंटिंग यूनिट. अगर हमने ऐसा लिख दिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, do you know what is this? 1 mole of hydrogen atom is equals to 6.023 into 10 to the 23 atoms of hydrogen. If I write here 1 mole of hydrogen molecule, what do you mean by this? It is 6.023 into 10 to the 23 molecules of hydrogen. If I write here 1 mole of electrons, it means 6.023 into 10 to the 23 electrons. If I write here 1 mole of protons, it means 6.023 into 10 to the power 23 protons. Clear? What do you mean? It is just a counting unit. 1 mole of proton means matlab 6.02 10 to the 23 protons. If I say in place of proton, can I write like this? H plus. Is it? Proton is also H plus, isn't it? I discussed in the previous class. 6.023 into 10 to the 23 protons. Clear? I can also write 1 mole of any entity. If I say 1 mole of chlorine atoms, it means what? 6.023 into 10 to the 23 atoms of chlorine. So what we learn from this? 1 mole of any entity is equals to 6.023 times that entity. 1 mole of any entity is what? 6.023 times that entity. My question is now, our discussion is next, from where does that 6.023 10 to the 23 came? So let us come to this concept.
द मोल। मोल जो है ना बेटा, बड़ा ही अनमोल चीज है। क्या है वो बेटा? अभी हम लोग देखे कि व्हेन आई से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट मींस 6.023 10^23 atoms of hydrogen. When I say 1 mole of hydrogen molecules, 6.0 to 10^23 molecules of hydrogen. When I say 1 mole of H plus ions, it is equal to 6.0 to 10^23 ions of H plus. When I say 1 mole of electrons, it means 6.023 10^23 electrons. Now the question arises, from where did I get that value 6.023 10^23? बेटा 6.023 into 10^23 is actually, in some literature they write it 6.022. No issues. 10^23 is equals to called Na, that is called Avogadro's number. This is called what? Avogadro's number. Now my question, now the concept of mole concept comes. What is mole? From where did I get this number? Remember, mole is the unit of amount of substance. It is defined as, the mole is the amount of substance. Mole क्या है? Amount of substance है, which contains as many elementary entities as there are atoms in 12 gram of carbon 12 isotopes. ध्यान दो, सुनो पहले मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। 12 ग्राम का 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप लिए। आई बात समझ में? इसके अंदर जितने एटम्स होंगे, कितने हैं? Na। उतने ठो कोई भी सब्सटेंस लिए तो उसको हम लोग 1 मोल बताएंगे। समझ में आया? और एक बार बता दें, फिर उसके बाद ये रटन विद्या वाला डेफिनेशन में जाएंगे। पहले समझो क्या बात है। 12 ग्राम का कार्बन 12 आइसोटॉप लिए, डन। उसके अंदर जितने तो एटम्स होंगे, कितने एटम्स है हमको पता है। कितने एटम्स है? 6.023 10^23 एटम्स है। उतने वैल्यूज के 6.02 10^23 वैल्यूज के जो भी चीजें लेंगे उसको हम लोग 1 मोल ही बताएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कितने एटम्स है? 6.023 10^23 एटम्स है। उतने तो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लिए तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। उतने तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिए तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। उतने तो इलेक्ट्रॉन्स लिए तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? क्लियर कट करो पहले। 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटॉप में जितने एटम्स हैं वो नंबर को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, जिसका वैल्यू है 6.023 10^23। उतने तो एटम्स 1 मोल ऑफ एटम, उतने तो मॉलिक्यूल्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, उतने तो इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? तो डेफिनेशन में फिर वापस आते हैं। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स एज मेनी एलिमेंटरी एंटिटीज। उसमें उतने तो एलिमेंटरी एंटिटीज होंगे एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटॉप में जितने एटम्स होंगे उतने एटम्स को, और जितने वैल्यूज आएंगे उस वैल्यू के इलेक्ट्रॉन्स को 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, उस वैल्यू के एटम्स को 1 मोल एटम्स, उस वैल्यू के प्रोटॉन्स को 1 मोल प्रोटॉन्स कहेंगे। The elementary entities must be specified and it may be atoms, molecules, ions, electrons or any other particles. If I say 1 mole of pen, मतलब 6.023 10^23 नंबर ऑफ पेन्स, बहुत ही ज्यादा बड़ा वैल्यू है। ये नंबर कहां से आया? ये जो नंबर हुआ 6.02 10^23 वो क्या है? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। आई बात समझ में? एक चीज देखते हैं क्या है। तो हर एक मोल में कितने एटम, कितने एंटिटीज रहेंगे? 6.023 into 10^23। हर एक मोल में कितने एंटिटीज रहेंगे? 6.023 into 10^23 एंटिटीज रहेंगे। तो देख लीजिए एक कॉन्सेप्ट, the number of moles. Number of moles is equals to total number of species n by
एवोगैड्रोस नंबर n है। कभी कभी एवोगैड्रोस नंबर को भी n नॉट लिखा जाता है, n0। इसका वैल्यू है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। बड़ा याद रखो, कभी कभी ये 6.022 भी लिखा जाता है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो भी लिटरेचर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको। तो एक सवाल कर लेते हैं, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट in the sample of ozone containing 18.066 into 10 to the power 24 molecules of ozone. Clear? This many molecules. तो हो गया। नंबर ऑफ स्पेसिस, स्पेसिस में भी एटम्स, में भी मॉलिक्यूल्स, में भी आयंस, में भी इलेक्ट्रॉन्स, में भी एनी पार्टिकल, हाँ या ना? तब बता दीजिए सोल्यूशन में क्या हो जाएगा। सोल्यूशन में यहां पर क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस n बाय एवोगाड्रोस नंबर n है। स्पेसिस कितना हो गया 18.066 इंटू 10 टू पावर 24 डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर कितना है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, थ्राइस ये 10 30। तो नंबर ऑफ मोल्स इज कितना 30। हो गया डाउट? सो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स हियर 30। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ लूं, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर, क्वेश्चन अगर आर कर दूं, how many atoms of oxygen are there, बताओ बेटा कितने मॉलिक्यूल्स हैं 18.066 इंटू 10 टू 24 मॉलिक्यूल्स। ईच मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, एटॉमिसिटी क्या है 3। आया एटॉमिसिटी याद है आपको, हम बताए थे पिछले लेक्चर में, एटॉमिसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का ओजोन लिए तो एटॉमिसिटी कितना हो गया 3, हाँ या ना? एक मॉलिक्यूल में 3, तो हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट आर देयर, सो इट इज 3 इंटू 18.066 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आई बात समझ में, 10 टू 24 एटम्स ऑफ easy, huh? Next discussion. Question is, how many moles of electrons are present in 1 kg of electrons? क्या आप जानते हैं क्या ये एक जेई क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। How many moles of electrons are present in 1 kg of electrons? ठीक, solution 1 kg। बताइए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इज इट 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। हियर सपोज देयर आर x मोल, ठीक है, देयर आर हाउ मेनी मोल x मोल। x मोल अगर है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया x इंटू एन इज इक्वल टू x इंटू 6.023 इंटू 10 टू 23 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाँ या ना 23 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमारे पास कितना हो गया इतना इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए इतने तो इलेक्ट्रॉन्स अगर हमको मिल गए, मास कितना होगा, मास इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू
मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अभी टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया हमारे पास? x इंटू Na इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31। मास, ये जो मास है कितना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यही है ना बेटा? x इंटू Na किया, मास इक्वल्स टू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? x इंटू Na, तो ये इतना हो गया क्या? इतना kg, यही है ना? मास इज 1 kg गिवन, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 1 Na इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। क्या ये इजी था? इजी, क्लियर? डाउट? अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं। 9.1 इंटू 10⁻31 kg 1 इलेक्ट्रॉन्स, so 1 kg 1 by this many electrons, so how many moles divided by 6.1023, एक ही बात। इजी? डाउट? कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मोलार मास। व्हाट इज दैट? इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और सैंपल और कंपाउंड भी बोल सकते। मोलर मास दो तरह के हैं, क्या क्या? ग्राम एटॉमिक मास, क्या क्या हो सकते हैं? मोलर मास दो तरह के हैं, एक है ग्राम एटॉमिक मास, दूसरा ग्राम मोलिकुलर। ग्राम एटॉमिक मास, if the sample is present in atoms, ठीक है? The sample is present in atoms or atomic form, or I can say atomic form, then we say it as gram atomic mass. And if the sample is present in molecular form, then we say gram molecular mass. If the sample is present in molecular form, we say it as gram molecular. So let us discuss one by one. First, gram atomic mass. What is gram atomic mass? Look here. What is gram atomic mass? It is the mass of 1 mole of atom. ग्राम एटॉमिक मास, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। बेटा पहले 1 मोल मतलब कितना? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, आया ना? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, क्लियर? ध्यान ना लिखने में भी जरूर। दिस मेनी एटम्स के मास को हम लोग क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि मोलर मास दो वैरायटी के, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास। अगर सैंपल एटॉमिक फॉर्म है तो हम इसको क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। यहां थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, क्या ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं? यहां पर ध्यान दीजिए, अगर यहां लिखा गया है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इज इट 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ 1 एटम, लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? Na इंटू मास ऑफ 1 एटम इज व्हाट? AMU, where A is the mass number. लास्ट क्लास डिस्कशन हुआ था, एटॉमिक मास यूनिट, मास नंबर, एटॉमिक मास यूनिट। क्या हम लोगों को ये याद है? 1/Na ग्राम इज इक्वल्स टू 1 AMU, लिख सकते हैं क्या? 1/Na ग्राम इज इक्वल्स टू 1 AMU। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? Na इंटू 1/Na इंटू A, ग्राम में कन्वर्ट हो गया, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम।
AM इक्वल्स टू A by Na ग्राम। तो ये क्या हो गया, Na कैंसिल, अरे Na इज एवोगाड्रोस नंबर, क्या हो गया A ग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। डेफिनेशन हमारे लिटरेचर में लिखा जाता है, ग्राम एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। पर इसके पीछे जो कारण है, जो रहस्य है, ये यही है। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। पर उसके पीछे कौन काम कर रहा है, ये बाकायदा, ये फंडामेंटल। क्लियर? देख लीजिए, नोट इट डाउन। व्हाट मोर वी शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, वी से इट एज ग्राम एटॉमिक मास। When atomic mass is expressed in grams। आई बात समझ में, क्लैरिटी मिला? That means is equals to how many atoms? 1 mole of atoms। 1 mole atoms के मास को हम लोग क्या कहेंगे? Atomic mass in grams। If I say 1 mole of calcium atom, how many grams? 40 grams। 1 mole of oxygen atoms, how many grams? 16 grams। 1 mole of nitrogen atom, how many grams? 28 grams। ठीक, 28 होगा? नहीं, nitrogen molecule 28, nitrogen atom 14, right? If I say 1 mole of helium atoms, how many grams? 4 grams। Done। Next, we got a sample He2O4। अगर ये हीलियम का सैंपल है, अगर किसी ने आपको पूछ लिया इसका एटॉमिक मास क्या है, ध्यान दीजिए बेटा, इसका एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज 4 AMU। पूछेगा एटॉमिक मास जो है उसको इन ग्राम्स में बताइए, इन ग्राम्स कितना होगा? 4 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। क्लियर? कितना होगा? 4 इंटू 1.6 इंटू -24 ग्राम्स। अगर किसी ने पूछा कि इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। ध्यान दीजिए ये कॉन्सेप्ट, ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। दिस इज व्हाट? मोलर मास। दिस इज व्हाट? मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल। डन। एक चीज का एनालिसिस करके बताइए मुझे। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। बताइए इसका एटॉमिक मास कितना होगा? और बकायदा हमें यह भी बता दीजिए कि उसका मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? ठीक है, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 AMU, मोलर मास 1 ग्राम। नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14 AMU, मोलर मास 14 ग्राम। ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 AMU, मोलर मास 16 ग्राम। हीलियम एटॉमिक मास 4 AMU, मोलर मास 4 ग्राम। आई बात समझ में? देखो ये मोलर मास है, इन ग्राम्स पूछने से 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर और मोलर मास और एटॉमिक मास में फर्क क्या है? हो गया, समझ में आ गया? अब मोल इज इक्विवेलेंट टू m grams, where m is molar mass, where m is molar mass। ठीक है, और हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ 1 मोल। अगर किसी ने सवाल पूछ लिया हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, number of moles is equals to mass of sample divided by molar mass। हो गया, mass of sample divided by molar mass। डाउट है इसमें? अब बताओ
तो ये इसको हम लिख सकते हैं N इज इक्वल्स टू W/m. इजी, डन. नेक्स्ट, 24 ग्राम ऑफ helium sample. Question is 24 ग्राम ऑफ helium sample. सवाल ये है कि how many moles? कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम बाय मोलर मास. कितना है वेट इन ग्राम? 24. मोलर मास हीलियम का कितना है? 4. 6 मोल्स. हाउ मेनी एटम्स, अगर किसने पूछा हाउ मेनी एटम्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6 यानी पर मोल, मोलर मास का पर मोल में कितने एटम्स हैं? 6.023 10^20 एटम्स. तो कितना हो गया? 6 Na. हुआ क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ या ना बोलो. नेक्स्ट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. व्हाट इज इट? इट इज द मास ऑफ 1 mole of molecule. 1 mole याद है? हाउ मेनी एंटिटीज? Na, Avogadro's number of molecules. हाँ या ना? तो that is equals to mass of Na molecule. कैसा लिख सकते हैं? Na into mass of 1 molecule. हाँ या ना? Na into x AMU लिख सकते हैं, where x is the molecular mass. x AMU हम लोग जानते हैं 1/Na ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1 AMU. हाँ या ना? तो ये क्या हो गया? Na into x, where x is molecular mass. X by Na grams, that is equal to x grams. Okay? So what is gram molecular mass? When molecular mass is expressed in grams. What is gram molecular mass? When molecular mass is expressed in gram, then it is called molecular mass. Then it is called gram molecular mass. I can say when molecular mass is expressed in grams. Done. Next one. देख लीजिए. If someone asks us about hydrogen, what is the molecular mass, beta? Molecular mass is 2 AMU. इन ग्राम्स कितना होगा? 2 into 1.66 into 10 to the minus 24 grams. But what is the molar mass? Mass of 1 mole, right? तो कितना हो जाएगा? 2 grams. हाँ या ना? मोलर मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल कितना हो जाएगा? 2 grams. Easy. I can say this gram molecular mass क्या है? Molecular mass is the mass of 1 molecule. जबकि मोलार मास क्या है? ध्यान दीजिएगा. जबकि मोलार मास क्या है? It is the mass of sample containing Na molecule. The mass of sample containing Na molecule. Sample will find molecular mass, then molar mass. Now tell me in this case, if the sample is hydrogen, molecular mass 2 AMU, molar mass
2 ग्राम। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल। इजी, क्लियर? इफ द सैंपल इज नाइट्रोजन, molecular mass 28 AMU, molar mass 28 gram. If this sample is carbon dioxide, molecular mass 44 AMU, molar mass 44 grams. If the sample is sulfuric acid, H2SO4, if the molecular mass is 98 AMU, molar mass is 98 grams. Now, so if the concept comes, how many moles are there? How to find the number of moles? Number of moles is equals to mass of sample divided by molar mass. Let us do a question on this. What is the question? If the sample is 96 gram of ozone is given. First question, how to find the number of moles? Weight in gram of sample by, और कभी कभी ऑक्सीजन ऐसे 16 करके दिया जाएगा। इससे क्या मिलेगा? हमको पता चल गया कि इसका एटॉमिक मास जो ग्राम एटॉमिक मास 16 है, या इसका एटॉमिक मास जो है वो 16 है, 16U या 16 AMU। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? 96। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? अभी बढ़ गया है 48, कितना हो गया? 2 मोल्स। बी, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 into Na। क्यों? क्योंकि पर मोल Na मॉलिक्यूल्स। अब हो गया एड्रेस नंबर 6.023 into 1023, 2 into Na। सी, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा? 2 into 3 into Na। क्यों? इसका एटॉमिसिटी 3 है। एटॉमिसिटी मतलब पर ओजोन मॉलिक्यूल कितना होगा? 3। तो how many ozoन molecules are there? 2 into Na, so 2 into 3 into Na। क्लियर? क्या दिया गया? 28 ग्राम ऑफ N3 माइनस सैंपल। इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन ने बकायदा 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रखा है, N3 माइनस वो। क्लियर? आप लोग जानते हैं, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द मास, और इसमें ये दिया गया है कि n इज इक्वल्स टू 14, तो इसका एटॉमिक मास 14 है। ठीक है? तो अगर पूछा हमको 28 ग्राम्स, तो पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू कितना होगा? n 14 दिया गया है, 28 by 14 कितना हो गया? 2 मोल्स। बी, नंबर ऑफ आयंस, तो ये क्या हो गया? 2 into Na, ईच मोल में Na आयंस। अब हो गया एड्रेस नंबर 2 Na आयंस। अगर पूछा गया टोटल चार्ज कितना होगा बेटा? ईच आयन का चार्ज कितना है? 3 माइनस। टोटल आयंस कितना है? 3 into 2 into 6.023 into 10⁻23। इतना चार्ज, इतना ठो आयंस है, मतलब पर आयन चार्ज कितना? 3 माइनस चार्ज पर आयन। कितने तो आयन है? 2 into Na, और पर चार्ज कितना है? 1.6 into 10⁻19 कूलम्स। क्या बात समझ में आया? और एक बार बोल दूं, पहले हमारे पास इतने ठो आयंस हैं, 2 into Na, पर आयंस का चार्ज कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? 3 नेगेटिव चार्जेस है। ईच नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1.6 into 10⁻19 कूलम्स। हो गया आंसर। नेक्स्ट, अगर उसने पूछ लिया थर्ड क्वेश्चन में, ये फोर्थ क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? टोटल
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए ईच आयंस में इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, मतलब 7 प्रोटॉन्स मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पर नाइट्रोजन 3 माइनस में 7 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास टोटल आयंस कितने हैं? 2 इंटू Na। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू Na इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ या ना? एनी डाउट? क्लियर? और हम आई कैन से 20 Na इलेक्ट्रॉन्स। Is it 1 mole of any gas at STP? Remember, 1 mole of any gas at STP occupies 22.4 liters or 22400 ml. Occupies how much? 22.4 liters or 22400 ml. अब देख लीजिए एसटीपी क्या है? एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है? जिसमें ओल्ड वर्जन में टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री, प्रेशर कितना था? 1 atm, जबकि आजकल हम लोग न्यू वर्जन में टेम्परेचर कितना लेते हैं? 273.16 केल्विन, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। और प्रेशर कितना है? 1 बार। क्लियर? इजी? हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल्स, ठीक है? और दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 atm जानते हैं बार जो है ना, 1 atm इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। और हम लोग इसको भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर? और इस कंडीशंस में 1 मोल ऑफ एनी गैस, हम लोग स्पेशली गैस नहीं लिखेंगे, जानबूझ के मैं यहां पर ये ऐसा ऊपर ऐड किया ताकि आप भूलेंगे नहीं। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी ऑक्युपाइज 22.4 लीटर। एक मोल का कोई भी गैस लो एट एनटीपी कंडीशंस या एसटीपी कंडीशंस कितने ऑक्युपाई करेंगे? 22.4 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया एट एसटीपी, वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 liters. If I will take 1 mole of nitrogen, STP 22.4 liters. 1 mole of, अगर हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, कितना हो जाएगा? 22.4 liters. अगर हमने ले लिया 1 मोल ऑफ अमोनिया, कितना हो जाएगा? 22.4 liters. क्लियर? क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अगर ये समझ में आया तो शायद ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल एट एसटीपी, ये लीटर्स में होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 22.4। ओके? अगर हमने आपको दे दिया 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, हाउ मेनी मोल्स? So number of moles is equals to 22.4, sorry 11.2 divided by 22.4, कितना हो जाएगा? हाफ मोल। अगर पूछा गया कि इसी कंडीशन में कितने ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल्स होंगे? हाफ मोल ना, ईच मोल हाफ इंटू Na मॉलिक्यूल्स। अगर किसने पूछ लिया कितने तो एटम्स होंगे? हाफ इंटू एटॉमिसिटी इंटू Na एटम्स। आई बात समझ में? क्लियर? समझ में आया? एक लास्ट एनालिसिस फिर क्वेश्चन। क्या है एनालिसिस? एनालिसिस बहुत ही सिंपल रहेगा।
हम लोग क्या सीखे आज? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ऑक्सीजन विच कंटेन्स 6.023 into 10^23 molecules of ऑक्सीजन। और इतने तो ऑक्सीजन के मास को हम लोग क्या लिखेंगे? मोलार मास। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम मोलिकुलर मास। आई बात समझ में? इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलर मास या ग्राम मोलिकुलर मास। ऑक्सीजन के केस में कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। हाँ या ना? मोलिकुलर मास एक्सप्रेशन ग्राम। इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज। ग्राम मॉलिक्यूल और इस ग्राम में टेंशन नहीं लेने का। 1 मोल 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 2 मोल्स 2 ग्राम मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? अगर हमने आपको 64 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया तो कितना हो जाएगा मोलर मास? वही 32। कितने मोल्स हो जाएंगे? 64/32। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? 64/32, 2 मोल्स। इजी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 8 STP ऑक्युपाइज 22.4 लीटर्स। मतलब यहां से क्या समझे आप? किसी भी गैस लीजिए, STP कंडीशन में अगर इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर्स है तो उसका मास कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। कॉन्सेप्ट क्लियर? इजी। इसी को अगर हम एटॉम में एनालिसिस करेंगे, इसी चीज को अगर हम एटॉम्स में एनालिसिस करेंगे, क्या होगा? इफ आई राइट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ऑक्सीजन विच कंटेन्स व्हाट? 6.023 into 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और इतने एटम्स को हम लोग क्या कहेंगे? वही मोलर मास, बस उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। कितना हो जाएगा इस केस में? 16 ग्राम। हाँ या ना? इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 ग्राम एटम। क्या कह सकते हैं इसको? 1 ग्राम एटम। ध्यान दो यहां पर। इफ आई से 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम और 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, इसमें सबसे ज्यादा एटम्स किसमें रहेंगे? 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम मतलब 1 मोल। 12 ग्राम एटम्स मतलब 12 मोल। सबसे ज्यादा एटम्स किसमें रहेंगे? सेकेंड ऑप्शन में। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर और एक चीज है, और एक छोटा एनालिसिस। क्या है वो एनालिसिस? अगर मान लीजिए 2 सैंपल है, सैंपल ऑफ नाइट्रोजन, सैंपल ऑफ ऑक्सीजन। इफ आई से they both have same number of molecules, if suppose both have 1 mole 1 mole, ठीक है? तो 1 मोल मतलब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स। मास कितना होगा? 1 मोल का मास कितना होगा? मोलर मास। ये भी उसका मोलर मास। पर एक फर्क देख रहे हैं आप लोग। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना? 28 ग्राम्स, जबकि ऑक्सीजन का कितना? 32 ग्राम्स। ये मास, ये मोलर मास सेम नहीं है, पर ये मोलर मास, ये मोलर मास है। इसमें ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। कितने एटम्स? ईच मॉलिक्यूल 2 एटम्स, 2 into Na एटम्स। एटॉमिसिटी इंटू नंबर ऑफ एटम्स, 2 into Na एटम्स। इसी के साथ एक काम करते हैं, अगर मान लीजिए ओजोन को भी ले लेते हैं, ठीक है? इसमें भी 1 मोल। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? Na मॉलिक्यूल्स। मास कितना होगा?
मोलर मास, वेट कितना हो जाएगा 48 ग्राम्स, हाँ या ना। हाउ मेनी एटम्स 3, एटॉमिसिटी ओजोन का कितना है 3 इंटू Na एटम, और 1 मोल ऑफ ईच गैस 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 एट एसटीपी कंडीशंस, सबका वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम कितना होगा 20.4 लीटर्स, 20.4 लीटर्स, 22.4 डन, इजी। डाउट, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर क्लास फाइंड करेंगे। देख लीजिए क्या है वो क्वेश्चन। सवाल यह है कि व्हाट इज द मास ऑफ मैग्नीशियम which contains the same number of atoms as that are present in 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम का मास कितना होगा जिसमें उतने ठो एटम्स हैं जितने एटम्स 4 ग्राम कैल्शियम में है। क्लियर? 4 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम्स हैं उतने एटम्स अगर मैग्नीशियम के होते तो उसका मास कितना होता। क्लियर? तो पहले इन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सेम है, ये भी एटॉमिक फॉर्म है, ये भी एटॉमिक फॉर्म है, दोनों का नंबर ऑफ एटम्स सेम, मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स से। तो पहले 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितना मोल्स, शायद आपको याद होगा नंबर ऑफ मोल्स, n इज इक्वल्स टू मास ऑफ दिस सैंपल बाई इसका मोलर मास जो है एटॉम के वर्सन में कितना, ग्राम एटॉमिक मास कितना है 4/40, कितना हो गया 1/10 मोल्स। अब बता दीजिए, यहां पर हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कितना 24 ग्राम, तो 1/10 मोल, बिकॉज इसमें जितना मोल होगा इसमें भी उतना ही मोल होगा। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 24 ग्राम, 1/10 मोल ऑफ मैग्नीशियम इक्वल्स टू 24 इंटू 1/10 इक्वल्स 2.4 ग्राम। इसका मतलब ये है कि 4 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम्स होंगे उतने एटम्स अगर मैग्नीशियम कर लेंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा 2.4 ग्राम। इजी। Now the next question, how many electrons are there in 16 gram of methane? Next question, how many electrons are there in 16 gram of CH4? Question is, how many electrons are there in 16 ग्राम ऑफ मीथेन। पहले सॉल्यूशन कैसा करेंगे, 16 ग्राम्स, सो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, वेट इन ग्राम ऑफ द सैंपल बाय इट्स मोलर मास कितना 16, तो कितना हो गया 1 मोल। तो हमें 1 मोल ऑफ मीथेन दिया गया है। हम लोगों को पता है कि ईच मीथेन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ईच कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 प्रोटॉन्स, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 4 कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो कुल मिला के कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो ईच मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स, ईच मीथेन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल में कितने सैंपल्स है, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, तो ईच मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स, Na मॉलिक्यूल्स में कितना होगा Na इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स। This brings us to the end of this lecture about mole concept. In the next class, we'll discuss more versions of mole concept with more numericals.
Hopefully you understood what we have discussed today. Today I discussed about the theory of the mole concepts with some practice problems. We'll have more discussion on these practice problems. Okay? If you really like this video, please do comment us and subscribe us so that you can get such more videos. And I think that if you have any doubt, you can write in the comment section or write a mail to us or WhatsApp us in our number. So till then, bye bye, take care, and do not forget to press the bell icon. Till then, bye bye, take care, and keep studying. Thank you. Hi friends, let us take a sneak peek of the last class discussions, because we are going to enter to the zone of mole concept. It's very tough and very important and even very easy. Why Simon has said tough and easy? Because sometimes students, even they have passed 12th class, they don't understand what is mole concept. So you have to be very keen and very tight-seated while understanding this mole concept. Open your notes, open your copies, and stay tuned to the mole concept zone. Let us take a sneak peek of the last classes. Sneak peek में पहले हम लोग सोचेंगे कि what is 1 AMU. याद है आपको? AMU is also known as atomic mass unit, और कभी कभी हम इसको भी U बोलते हैं. U is what? U is called unified mass. ये तब हम लोग लिए जब कार्बन का हम लोग रेफरेंस लेते थे. U is what? Unified mass. क्या है ये? AMU. याद है आपको? 1 AMU is equals to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg, or 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. 1 AMU is equals to 1 by Na grams. ये Na क्या है? Na is nothing but Avogadro's number. ये पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए थे. What is 1 by what is Na? Na is Avogadro's number. तो हम लोग क्या ऐसे पढ़े थे? 1 AMU is approximately equal to mass of 1 न्यूक्लियन. न्यूक्लियन क्या है बेटा? जो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा हम उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियन. इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन. दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन. याद है आपको? क्लियर? और क्या स्निक पिक में पढ़े थे? और क्या पढ़े थे? ये एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू कितना है? 6.022 into 2 or 23 is the value of this Avogadro's number. ये कहां से आया था? याद है आपको? It is the number of atoms present in 12 gram of carbon 12 isotopes. क्लियर? और क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? एक स्निक पिक ले लेते हैं. एटॉमिक मास क्या था? पढ़े थे हम लोग. व्हाट इज एटॉमिक मास? और क्या पढ़े थे? एटॉमिक मास. क्या आपको एटॉमिक मास याद है? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम. मास ऑफ एन एटम. तो एटम में क्या क्या है बेटा? एटम में प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है. तो मास ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस. सो ये जो है हम लोग क्या कर रहे थे? नेग्लेक्ट कर रहे थे. तो हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. हाँ या ना? तो यहां से हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मास को हम लोग क्या लेते हैं? 1 AMU. याद है आपको? तो इतना AMU हो गया. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A AMU. व्हाट इज दिस? A इज द मास नंबर. क्यों? क्योंकि AMU मतलब 1 AMU इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन. याद है आपको? हम लोग पढ़े थे स्निक पिक में. देख नेक्स्ट. तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पर. याद है अगर आपको? ऑक्सीजन
का एटॉमिक मास कितना होगा? ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं कि 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन्स है, तो कितना होगा? 16 AMU। डन। क्या हो जाएगा? 16 AMU। अगर ग्राम्स में लिखने के बोले तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, अगर ग्राम्स में लिखने का कहा गया तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। क्लियर? अगर किसने बोला कि केजी में लिखो, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। ठीक है, और क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? मॉलिक्यूलर मास। और क्या पढ़े थे? मॉलिक्यूलर मास। और क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मान लीजिए वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? ये H, ये H और ये O, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 1 AMU। इसका 1 AMU, इसका 16 AMU। कितना हो गया कुल मिला के? 18 AMU। डन। ग्राम में लिखने की कोशिश करेंगे तो 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। केजी में लिखने की कोशिश करेंगे तो 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। इजी। नेक्स्ट, और क्या पढ़े थे? मोलार मास। और क्या पढ़े थे? मोलार मास। ये मोलार मास क्या पढ़े थे? मोलर मास is the mass of 1 mole of substance। याद है? ये दो तरह के था। क्या था? ग्राम एटॉमिक मास, और क्या था? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये ग्राम एटॉमिक मास और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? इफ सैंपल इज इन एटॉमिक फॉर्म, और ये क्या है? इफ सैंपल इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। याद है आपको? इसका थोड़ा देख लेते हैं रिवीजन। क्या है ग्राम एटॉमिक मास? क्या है देख लीजिए। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? मास ऑफ 1 मोल। बताए थे मोलर मास इज व्हाट? मास ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ atoms। that means this is a mass of 6.023 into 10⁻23 atoms into mass of 1 atom। क्लियर? अब बताइए, क्या इसको हम लोग Na लिख सकते हैं, अवोगाड्रोस नंबर, इंटू मास ऑफ 1 एटम कितना है? क्या ये AMU है? हाँ या ना? एटॉमिक मास। अब बताइए मुझे 1/Na इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 AMU। AMU इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Na इंटू A/Na ग्राम्स। कैसे पढ़े थे? 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम्स। ये क्या हो गया? A ग्राम्स। इसका मतलब क्या हो गया? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स का मास कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ग्राम एटॉमिक मास हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। डन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या एनालिसिस करेंगे बेटा? पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट को एक बार फुल एनालिसिस। इफ आई से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या इसका मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि मोल
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है, ठीक है। इफ आई से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट मींस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच कंटेन्स व्हाट 6.023 into 10^23 क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपको याद है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के मास को हम लोग क्या कहते हैं, मोलार मास। और इसका मोलार मास को हम लोग क्या कहते थे, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, हाँ या ना। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 44 AMU और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 44 ग्राम्स, ठीक है। क्या आपको याद है अगर मैंने 88 ग्राम ले लिया और कितने मोल पूछा तो 44 ग्राम इज 1 मोल, 88 ग्राम कितना हो जाएगा 2 मोल्स। सो ऐसे ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सैंपल इन ग्राम्स बाय मोलर मास। लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना बोलो। और यहां से हम लोग क्या सीखे ना, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, हम लोग आइडियल गैस नहीं लिखते सिर्फ गैस लिखते हैं, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स और 22400 ml 8 NTP। याद है आपको, इजी। मान लीजिए आपको किसी ने दे दिया 2 into 6.023 10 to 20 कितने मोल 2 मोल्स। मोलर मास इज ऑलवेज 1 वही 44 टोटल 4 into 2 क्लियर। वॉल्यूम ऑक्युपाइड 22.4 into 2 क्योंकि 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू 20.4 लीटर्स, दैट करस्पॉन्ड्स टू मोलर मास। अगर कहीं पर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन और 1 बार जो आजकल हम लेते हैं, पहले तो हम लोग 1 ATM लेते थे, 1 ATM आज भी कंसिडर होता है, उस कंडीशन में आपको अगर 1 मोल का कोई सब्सटेंस मिला उसका करस्पॉन्डिंग मास को हम लोग क्या कहेंगे मोलर मास। या उल्टा सोच सकते हैं, अगर हमें कहीं 44 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड मिला और उसका टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस एनटीपी के साथ सेम है तो कितने मोल होंगे 1 मोल। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 10 to 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने एटम्स होंगे, एटॉमिसिटी पर कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स हैं, एक कार्बन 2 ही ऑक्सीजन। सो 1 + 3 1 + 2 हाउ मच 3, सो 3 into 6.023 10 to 23 एटम्स होंगे। क्लियर, इजी। एक सवाल यह है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर एट NTP। सवाल क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर एट NTP। क्लियर, सवाल ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 18 ml के वाटर में NTP में। पहले इलेक्ट्रॉन का काम निपटा देते हैं। इफ आई टेक हियर वाटर, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, मतलब एक ही प्रोटॉन है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। 2 हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, फॉर 2 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 2, तो कुल मिला के कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑक्सीजन है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया कुल मिला के इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वाटर। ईच वाटर मॉलिक्यूल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। डन। अब आइए, हमको यहां वॉल्यूम दिया गया है 18 ml। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या प्रॉब्लम करते हैं ना, वो जो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 20.4 लीटर्स एट NTP वाला फंडामेंटल डाल के क्वेश्चन का पूरा वाट लगा देते हैं। ध्यान दो बेटा, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP ऑक्युपाइज 20.4 लीटर्स, परंतु NTP कंडीशंस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर गैस बनना बहुत ही डिफिकल्ट टफ टास्क है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट जो पूछा गया है क्वेश्चन, इसमें कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 18 ml दिया गया है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 1 ग्राम पर ml,
वाटर इज नॉट ए गैस एट एनटीपी, 1 ग्राम पर ml। तो मास कितना होगा, हम लोगों को पता है फॉर्मूला ना, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना 1, वॉल्यूम कितना 18, तो कुल मिला के कितना हो गया 18 ग्राम्स मिल गया। तो हमको मास 18 ग्राम मिल गया, तो हम लोगों को पता है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। 18 ग्राम बाई मोलार मास ऑफ वाटर कितना 18 ग्राम, तो कितने मोल्स हो गए 1 मोल। तो वी हैव 1 मोल ऑफ वाटर, मतलब कितने वाटर हो गए Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर हमारे पास Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे Na इंटू ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10 टू 23 इंटू 10 लिखो, या 6.023 इंटू 10 टू 24 लिखो। बेटा मेरा एक छोटा सा एडवाइस है, मानो तो चलेगा, नहीं मानो तो भी चलेगा, जब तक जरूरत ना पड़े तब तक इस वैल्यू के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन मत करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा वैल्यू है, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि how many atoms of oxygen are present in 196 gram of sulfuric acid? How many atoms of oxygen are present in 196 gram of sulfuric acid? पहले तो बच्चा हमको क्या करना होगा, 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू मोलर मास इसका कितना 98 ग्राम्स। कैसे? हाइड्रोजन का 2 आएगा, सल्फर का 32 आएगा, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64 आएगा। श्योर 64 आएगा 16 इंटू 4। क्लियर? तो कितना हो जाएगा 98 ग्राम्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कैसा होगा, वेट इन ग्राम, मास इन ग्राम बाई मोलर मास, कितना हो गया 2 मोल्स। अब बताइए इन 1 मोल ऑफ H2SO4 हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर? एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना है 4 एक मॉलिक्यूल में। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ईच मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं 4, सो Na इंटू 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। पर हमारे पास कितने मोल है, 2 मोल ऑफ H2SO4 will have 2 into 4 into Na atoms of oxygen। क्या ये बात आपको समझा पाया हमने? 4 to 8 Na, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा इसमें 8 Na atoms of oxygen। क्लियर? इजी? नेक्स्ट डिस्कशन।